ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ، ہر دل کی تمنا ہے اخبار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 7 جون 2020 مطابق 14 شوال المکرم کے اودھ نامہ اخبار کے ساتھ میں موسی رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اودھ نامہ کے صفحے اول کی پہلی خبر کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہند اور چین جیسے ملک اگر زیادہ تعداد میں جانچ کرے تو ان کے یہاں کرونا وائرس کے معاملے امریکہ سے زیادہ ہوں گے۔ بتاتے چلے امریکہ میں کرونا کے قریب 19 لاکھ معاملے سامنے آئے ہیں اور 1,09,000 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ بھارت میں اس مہلک بیماری سے 2,36,184 اور چین میں 84,177 معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق بھارت نے اب تک کورونا کی 40 لاکھ جانچ کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں زیادہ معاملے اس لیے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ہم چین یا بھارت یا دیگر جگہوں پر جانچ کرنا چاہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں زیادہ معاملے ہوں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ وائرس چین سے آیا ہے جسے چین میں ہی روکا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ساری باتیں پوریٹن میڈیکل پروڈکٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ عالمی ادارہ WHO کے ذریعے آیوشمان بھارت کی اسکیم کی تعریف و توصیف بھی اسی صفحے کی ایک اہم خبر ہے، جس میں عالمی ادارہ صحت WHO نے آیوشمان بھارت اسکیم کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر عمل درآمد میں تیزی لانے سے ہندوستان کووڈ-19 سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے۔ بتاتے چلے کہ مودی سرکار کی ہیلتھ اسکیم آیوشمان بھارت کے تحت حکومت نے 10 کروڑ غریب خاندانوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے کی مفت صحت خدمات فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ زمینی سطح پر صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ WHO کے مطابق آیوشمان بھارت اسکیم کو کسوٹی پر کسنے اور تیز کرنے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وبا سے لڑنے میں اس کا بھرپور استعمال کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی WHO نے ہدایت بھی دی ہے کہ وبا کے کیسز میں انتہائی دگنا اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا خطرہ ابھی برقرار ہے۔ ایک ساتھ 25 ضلعوں میں نوکری کرنے والی خاتون ٹیچر کی خبر شاہ سرخی سے متصل ہے، جس کی تفصیل کے مطابق ریاست کے 25 ضلعوں میں فرضی دستاویزات کی مدد سے ٹیچر کی نوکری کرنے والی انامکا شکلا کو پولیس نے BSA آفس سے گرفتار کر لیا ہے۔ انامکا کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب BSA نے فرید پور اسکول میں اس نام کی سائنس ٹیچر تعینات کو نوٹس بھیجا، جس پر انامکا گھبرا گئے اور اپنا استعفیٰ اور جواب داخل کرنے دوپہر بعد آفس پہنچ گئی۔ یہ اطلاع BSA نے DM اور SP کو دے دی، جہاں پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق اس نام کی ٹیچر کے دستاویز سے وہ ریاست کے دیگر ضلعوں میں بھی ٹیچر کی نوکری حاصل کر چکی ہیں۔ پورے معاملے کی تفصیلی جانچ ابھی جاری ہے۔ مسجدوں کے 8 جون سے کھلنے کی خبر کچھ شرائط کے ساتھ صفحے پر نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مسجدوں میں صرف فرائض کی ادائیگی کریں، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں، جماعت کے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں، جب تک مسجد میں رہیں ماسک پہنے رہیں، اذان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ نہ رکھیں، نمازوں کو امام صاحب طویل نہ بنائیں اور جمعے کی نماز میں خطبہ بھی مختصر رکھیں، مسجد میں جماعت سے پہلے اور بعد میں غیر ضروری اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں، نمازی گھر سے جا نماز لے کر آئیں اور مسجد میں رکھی ٹوپیوں کا استعمال نہ کریں، وضو گھر سے کر کے مسجد آئیں۔ بہتر یہ ہے کہ متولی حضرات وضو خانے اور غسل خانے بند رکھیں۔ ہر نماز سے پہلے مسجد کے فرش اور دیواروں کو سینیٹائز کیا جائے یا فنائل وغیرہ سے فرش کی دھلائی ضرور کریں۔ مسجد میں کسی سے ملاقات کرتے وقت مصافحہ یا گلے ملنے سے پرہیز کریں۔ بہار سے ایک تشدد کی خبر کو صفحے کے ذیلی حصے میں جگہ ملی ہے، جس کے مطابق بہار کے چمپارن میں مبینہ طور پر جے شری رام کا نعرہ نہیں لگانے والے اقلیتی طبقے کے ایک نوجوان پر چاقو سے حملہ کیا گیا ہے۔ قاتلانہ حملے کے بعد بے ہوش ہو چکے نوجوان کو مردہ سمجھ کر قاتل وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن کافی جدوجہد کے بعد اس کی جان بچ سکی اور اس وقت وہ اسپتال میں بھرتی ہے۔ 6 لوگوں کے خلاف FIR درج کر لی ہے، لیکن ہنوز کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے دی جانے والی سوغات بھی صفحے کے درمیانی حصے پر موجود ہے، جس میں 28 سب اسٹیشنوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی اطلاع دی گئی ہے، جس کی مدد سے اتر پردیش میں بجلی نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔ حج سے متعلق شائع خبر بھی اہم ہے، جس کے توسط سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج 2020 سے متعلق کوئی واضح اعلان نہ کیے جانے کے بعد عازمین حج کو جمع شدہ 100% رقم واپس کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس درمیان مہاراشٹر حج کمیٹی کے چیئرمین نے مطالبہ کیا ہے کہ 5 مہینے رقم رکھنے کے عوض عازمین حج کو معاوضہ بھی دیا جائے۔ ان خبروں کے علاوہ لکھنؤ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر پازیٹیو چنہٹ اور ایش باغ بنے ہاٹ اسپاٹ، اور راہل گاندھی کا بیان بھی صفحے اول پر موجود ہے، جس میں انہوں نے مرکز پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت مالی امداد سے انکار کر کے ملک کو برباد کر رہی ہے۔
عالمی صفحے کی پہلی خبر میں امریکہ میں ہونے والے پرتشدد واقعات کا ذکر ہے۔ تفصیل کے مطابق امریکہ میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ایک مرتبہ پھر پولیس کے وحشیانہ تشدد کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق وائرل ہونے والی حالیہ ویڈیو امریکی ریاست نیو یارک کی ہے، جہاں پولیس نے ایک 75 سالہ سفید فام بزرگ کو زوردار دھکا دیا، جس کے باعث وہ زمین پر گرے اور ان کے کان سے خون بہنے لگا۔ بعد ازاں ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں نیو یارک سٹی کی پولیس نے ایک نوجوان کو انتہائی بے دردی سے گرفتار کیا۔ پولیس کے ترجمان جیف رونالڈو نے کہا کہ جب مظاہرین کو دھکیلنے کی ویڈیو سامنے آئی تو 2 پولیس اہلکاروں کو بغیر تنخواہ معطل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں شہر کے کرفیو کے آغاز کے 27 منٹ بعد نیو یارک شہر میں پولیس نے ایک ڈیلیوری ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جبکہ وہ کرفیو سے مستثنیٰ تھا۔ امریکہ میں ہونے والے ان تشدد کی واردات پر خود وہاں کے باشندوں کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی احتجاج و تنقید دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حال ہی میں پوپ فرانس نے امریکہ میں بدامنی پر اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی نسل پرستی سے اپنی نظریں نہیں چرا سکتا، تشدد صرف اپنی تباہی اور شکست کا باعث بنے گا۔ شاہ سرخی میں شائع باکس کی خبر کے مطابق امریکی سینیٹر نے کہا ہے کہ امریکہ میں نسلی امتیاز کا دائرہ سیاہ فاموں کے ساتھ پولیس کے تشدد پسندانہ اقدامات سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دوسری خبر میں ایرانی جوہری توانائی معاملے کا ذکر ملتا ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے ویانا میں عالمی اداروں میں تعینات روس کے مستقل مندوب نے کل رات جوہری توانائی کے عالمی ادارے کی جانب سے ایران سے متعلق خفیہ رپورٹ کی مغربی ذرائع ابلاغ میں اشاعت پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ رکن ممالک کو دی جانے والی رپورٹ کے 5 منٹ بعد مغربی ذرائع ابلاغ میں اس کی اشاعت نے اس کے خفیہ ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ وہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے فرانس کے حکام کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دینی چاہیے۔ صفحے کے ذیلی حصے میں امریکہ کے خاص نمائندے رضوان رضوی کی خصوصی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اپنی رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں یوم انہدام سے آج تک ہر سال پوری دنیا میں 8 شوال کو انہدام کے خلاف مظاہرہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی ہر سال جنت البقیع کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں اور احتجاج بلند ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے لیے تو پورے ملک یعنی امریکہ میں احتجاج ہوتے ہیں، لیکن شکاگو میں جنت البقیع کے لیے بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتا ہے۔ یہاں البقیع نام سے ایک ادارہ ہے جو سال بھر بقیع کے لیے کام کرتا ہے، جس میں شہاب حسین، شہریار رضوی، علمدار بدر، شفیق بدر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ نیو یارک میں ادارہ یا فاطمہ زہرا کی جانب سے بھی ہر سال بقیع کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوتا ہے۔ یہ احتجاج تقی رضوی کی سربراہی میں انجام پاتا ہے۔ اس ادارے میں امریکہ، کینیڈا، یورپ، ہندوستان، پاکستان سے بھی کثیر تعداد میں حضرات، علماء و دانشور حضرات موجود رہتے ہیں۔ اس موقع پر رضوان رضوی نے امریکہ کے تمام اداروں اور دنیا بھر کے مومنین سے اپیل کی کہ آپ جس ملک میں بھی ہوں وہاں 8 شوال کو سعودی سفارت خانے پر یا تو خود جا کر احتجاج درج کریں یا ای میل کے ذریعے اپنا احتجاج درج کریں، جس میں جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کی مانگ شامل ہو۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد وہ دن آئے گا جب جنت البقیع میں بھی شاندار روضوں کی تعمیر ہوگی۔ ان خبروں کے ساتھ امریکہ کے جنوبی صوبے جارجیا میں ایک چھوٹے طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے 2 بچوں سمیت 5 افراد کی موت، اور عرب لیگ نے فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقوں کو مقبوضہ علاقوں میں شامل کرنے کے صہیونی منصوبے کو جنگی جرم قرار دیا۔ خبریں بھی نمایاں حیثیت سے شائع ہوئی ہیں۔ اودھ نامہ 7 جون کے ریاستی صفحے کی پہلی خبر میں لکھتا ہے جون 2020 سے دی جانے والی رعایات کے پیش نظر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان لاک کا مطلب آزادی نہیں ہے، عوامی مقامات پر 5 سے زیادہ افراد جمع ہونے نہ دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اونیش کمار اوستھی کے ذریعے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان سرگرمیوں کے پروٹوکول کے بارے میں رہنما ہدایات جاری کریں۔ انہوں نے مزید کہا 15 جون اور 30 جون کے درمیان روزانہ 1 کروڑ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے، اور اس ایکشن پلان کے کامیاب نفاذ کے لیے سبھی متعلقہ محکموں کو اپنی سرگرمیوں اور کاموں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ شہری ترقیات اور محکمہ دیہی ترقیات کو ہدایات دی کہ وہ اسٹریٹ وینڈرز کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک ضلع کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کا انتخاب کریں اور وزیر اعظم پیکیج کے ساتھ اسٹریٹ وینڈرز کو جوڑ کر روزگار کی فراہمی کا ماڈل تشکیل دیں۔ خبر سے منسلک ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اونیش کمار اوستھی کا بیان بھی موجود ہے۔ خبر سے منسلک ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اونیش کمار اوستھی کا بیان بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کووڈ-19 کے وبا کے روک تھام کے سلسلے میں مذہبی پوجا مقامات، دفاتر، مال، ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے مرکزی وزارت صحت و کنبہ و بہبود حکومت ہند کی جانب سے جاری گائیڈ لائن کے ضمن میں ریاستی حکومت کے ذریعے رہنما ہدایات جاری کیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سبھی زون میں 65 برس سے زیادہ عمر کے شخص، 1 سے زیادہ بیماریوں میں ملوث شخص، حاملہ خواتین اور 10 برس کی عمر کے بچوں کو جب تک ضرورت نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلنے کی صلاح دی جائے۔
अवामी मकामात पर थूकना मुकम्मल तौर पर ममनू है। सभी को आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोड ऐप का इस्तेमाल करने के लिए राग़िब किया जाए और अपने सेहत की खुद मुसलसल जांच करते हुए किसी तरह की बीमारी के सिलसिले में फौरन महकमे सेहत की हेल्पलाइन 1800-180-5145 पर राब्ता करें। गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल के बयान यूनिवर्सिटियों में तालीमी और तहकीकी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए के तहत अखबार लिखता है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अरब रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के जरिए मुनक़दा 2 रोज़ा इंटरनेशनल वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्किल तकनीकी तरक्यात मकामी वसाइल को और ताकतवर करते हुए इस मुहिम में ताबून करें जिससे समाज और कौम सेहत एहतियात और ताकतवर बना रहे। मोहतरमा पटेल ने कहा कि मुल्क की तालीमी निज़ाम में टेक्नोलॉजी पर मबनी नए दौर में मुतादिद इम्कानात हैं। हमारे माहिर तालीम ऑनलाइन कोर्सेज चलाने और इम्तिहान दिलाने के मौजू पर संजीदगी से सोचें और अपने सुझाव रखें जिससे तालीम और तालीमी निज़ाम के मुस्तकबिल की गाइडलाइन तैयार की जा सके। सफ़े पर शाये एक और खबर के मुताबिक इंदिरा नगर थाने के तहत रसूलपुर सादात गांव के आरबी ईट भट्टे चिमनी के करीब कच्ची ईंटों की एक दीवार अचानक गिर गई जिसके नतीजे में 4 मजदूर जख्मी हो गए। सभी को जख्मी हालत में लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनमें से 2 की हालत संगीन देखकर डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया। इनके अलावा वजीर तालीम, मालियात, पार्लिमानी उमूर और तिब्बी तालीम सुरेश कुमार खन्ना की जाँच रिपोर्ट में कोरोना की कोई अलामत नहीं। जौनपुर में 15 मजीद कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और लखनऊ चिड़ियाघर के 9 जून से खुलने की खबरें भी शहर की सरगर्मियों से आगाह करा रही हैं। अवधनामा के वाइस एडिशन में सफा 7 और सफा 8 की अहम खबरों के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूं। पहली सुर्खी में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान शाये हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि लापरवाह अस्पतालों को नहीं बख्शा जाएगा। खबर के मुताबिक मिस्टर केजरीवाल ने हफ्ते के रोज यहां डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के अहकामात के बावजूद कुछ निजी अस्पताल के मालिकान मनमानी कर रहे हैं। अहकामात के मुताबिक तमाम निजी अस्पतालों को अपने यहाँ 20% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व होना लाजिमी है और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत मौसूल हुई है, कुछ अस्पताल खाली बिस्तर होने के बावजूद मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हुकूमत के नुमाइंदे तमाम निजी अस्पतालों के रिसेप्शन पर मौजूद होंगे जो अस्पताल के खाली बिस्तरों की निगरानी करेंगे। इसी खबर के बाक्स में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के मरकजी वजीर तालीम को खत लिखे जाने की भी खबर है। खबर के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को दोबारा खोलने के मंसूबे पर मरकजी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक को खत में लिखा है कि कोरोना के साथ रहते हुए दुनिया में तालीम में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। अपनी जरूरत के मुताबिक स्कूलों की असर-ए-नौ तश्कील दें। हमें दूसरे ममालिक के कुछ करने का इंतजार नहीं करना चाहिए फिर हम उसे कॉपी करेंगे। हमें अपने बच्चों को एक बेहतर और ज्यादा निगहदाश्त का स्कूल देना चाहिए। कोरोना की वबा पूरी इंसानियत के सामने एक बुहरान है लेकिन स्कूलों के किरदार पर दोबारा गौर करने का भी मौका है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जरूरतमंदाना किरदार के लिए स्कूलों को तैयार नहीं किया गया तो ये हमारी तारीखी गलती होगी। पेशानी की बाईं जानिब जमात इस्लामी के रुकन मौलाना रफीक कासमी के इंतकाल की खबर है। खबर के मुताबिक जमात इस्लामी हिंद के रुकन शुरा और साबिक सेक्रेटरी मौलाना रफीक अहमद कासमी का सुबह दिल का दौरा पड़ने से 74 बरस की उम्र में एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। पसमानदगान में 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। तदफीन बाद नमाज असर शाहीन बाग कब्रिस्तान में हुई। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का यह अजीब गरीब बयान भी इसी सफे पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि खालिस्तान के हक में नारे लगाना गलत नहीं है। खबर के मुताबिक श्री अकाल तख्त साहब के एग्जीक्यूटिव जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सनीचर को कहा कि वो खालिस्तान के मुतालिबे के सिलसिले में सिख नौजवानों की जानिब से खालिस्तान की हिमायत में नारेबाजी को गलत नहीं समझते। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में हर साल 6 जून को तकरीब का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर तकरीब के दौरान सिख नौजवान जज्बात में आकर खालिस्तान की हिमायत में नारेबाजी करते हैं तो इसे वो गलत नहीं समझते। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमतों की पॉलिसियां हमेशा सिख मुखालिफ रही हैं। इसी के साथ ALS यूट्यूब चैनल पर आलमी मुशायरे की खबर भी सफा 7 पर नुमाया है। एशियन लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ALS यूट्यूब चैनल पर आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही कलिमात मारूफ शायर व कलमकार और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के प्रोग्राम प्रोड्यूसर नोमान शौक ने पेश किए। दिलदार दहलवी, डॉक्टर नवाज देवबंदी, शारिक कैफी, शबाना नजीर, नुसरत मेहंदी, तरुणा मिश्रा, खालिद आजमी, मीना खान, राजू रियाज, खालिद अखलाक, आशकारा कश्फ, सुहैब फारूकी, अमित बजाज, अभिषेक अंबर वगैरह ने अपना कलाम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सामईन की नजर किया। सफा आखिर की पहली सुर्खी इस तरह है, प्रियंका गांधी ने 44,000 मुहाजिरों को भेजा घर। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,000 बसें मुहैया कराने की तजवीज योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के जरिए खारिज कर दिए जाने के बावजूद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी
प्रियंका गांधी की मदद से अब तक रियासत के 44,000 से जायद मुहाजिर अपने घर पहुंचाए जा चुके हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने लॉकडाउन से पैदा बहरान में मुल्क के कई हिस्सों में फंसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, बसों और ट्रांसपोर्ट के दीगर वसाइल में सीटें हासिल करने में भी मदद की है। बीएसपी सरबराह मायावती का बयान पेशानी की बाएं जानिब शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गरीबों को नहीं मिल रहा है वजीर आजम गरीब कल्याण पैकेज का फायदा। खबर के मुताबिक एसपी की सरबराह ने मरकजी हुकूमत के वजीर आजम गरीब कल्याण पैकेज और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान मुहिम पैकेज की तारीफ की, लेकिन रियासतों में उनके गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार भी किया। मायावती ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वजीर आजम गरीब कल्याण पैकेज और खुद इन्हिसार भारत मुहिम के पैकेज की नई स्कीमों के अलावा मजीद अखराजात नहीं होंगे। ये उनके लिए खुश आइंद इक़दाम है, लेकिन इसके फवायद गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। इसी खबर के ज़ैल में साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का शायराना बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खाता न बही, जो पीएम कहें वही सही। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राज में खाता न बही, जो पीएम कहे वो सही की तर्ज पर हुकूमत चल रही है। मिस्टर यादव ने जुमे के रोज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार में पेश किया गया मरकजी बजट हो या वक्त वक्त पर राहत पैकेज का ऐलान, सब में तफसीलात गायब रहती हैं। इबादतगाहों को खोलने के लिए जिला इंतजामिया के तमाम मजाहिब के रहनुमाओं के साथ मीटिंग की खबर भी सफा आखिर पर नुमाया है, जिसमें बताया गया है कि आज कलेक्ट्रेट लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम हॉल में मजहबी इबादतगाहों को खोलने के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें शिया फिरके की जानिब से मौलाना यासूब अब्बास, अहले सुन्नत हजरात की जानिब से मौलाना खालिद रशीद, एमएलए एंड लीवर्स चर्च की जानिब से आशीष मैक्सन और अहले हुनूद की जानिब से महद दिव्यागिरी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदार और उनके अलावा कमिश्नर लखनऊ, डीएम लखनऊ, नगर आयुक्त लखनऊ, नगर निगम और पुलिस के जिम्मेदारान के साथ राजनाथ सिंह के संसदीय सचिव दिवाकर त्रिपाठी ने शिरकत की और अपनी राय रखी। इसके अलावा लखनऊ में 3 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने, वकला तंजीम की तरफ से बहादुर सहाफियों को एजाज से नवाजने और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर 15,13,863 लोगों का चालान कर उनसे 26 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने के तौर पर वसूले जाने की खबर भी अवधनामा के आखिरी सफे पर है। नाज़रीन, अवधनामा में आज शाये होने वाले सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और उनकी तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। इदारती सफ़े पर आज 3 मज़ामीन शाये हुए हैं। पहला मज़मून मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का बउनवान मुजरिम मुसलमान शाये हुआ है, जिसमें मज़मून निगार लिखते हैं कि हथनी क्यों मरी, मुजरिम मुसलमान, बारिश क्यों हुई, मुजरिम मुसलमान, आंधी क्यों आई, मुजरिम मुसलमान। ये नया हिंदुस्तान है जहां आंखें मूंद कर तमाम इल्जामात मुसलमानों पर डाल दिए जाते हैं। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले की अदालत में गवाही चल रही है, अब हंसी आती है। क्या इसकी कोई जरूरत है? फैसला आ चुका, कह दिया गया कि यह हिंदुत्व की जीत है। फिर हिंदुत्व की फतह का जश्न मनाने वाले मुलजिमीन कहां से हो गए? इन गवाहियों से क्या होगा, जबकि राम मंदिर तामीर का रास्ता भी खुल चुका है और यह तामीर का मामला भी बीजेपी के मंशूर के ऐन मुताबिक है। फिर इस जिरा मुकदमे या गवाही का क्या मतलब है? राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन से हमारी मईशत तबाह हो गई। अगर कोई हकीकत में तबाह हुआ है तो वो मुसलमान है, जो मजदूर भी हैं, ताजिर भी हैं, गरीब तबके से भी ताल्लुक रखते हैं और मिडिल क्लास में भी देखे जा सकते हैं। हम जिस शाहीन बाग एहतजाज को कामयाबी की जमानत समझ रहे थे, लॉकडाउन के बहाने से हुकूमत हिमायत करने वाले तमाम अफराद पर शिकंजा कस रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ बोलना जुर्म है। दूसरा मजमून मासूम मुरादाबादी का है, जिसका उन्वान है अमरीका नस्ल परस्ती की आग में जल रहा है। फाजिल मजमून निगार लिखते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमरीका इस वक्त नस्ल परस्ती की आग में बुरी तरह जल रहा है। आतिशजनी, लूट मार और तशद्दुद के मनाजिर इतने डरावने हैं कि उन्हें पूरी तरह अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मुहज्जब मुल्क करार देने वाले अमरीका में ऐसे दिलखराश मनाजिर भी देखने को मिल सकते हैं। मगर यह हकीकत है कि इस वक्त पूरे अमरीका में हाहाकार मची हुई है और नज्म नस्क की मशीनरी पूरी तरह घुटनों पर आ गई है। यह है सबसे ज्यादा ताकतवर, मुहज्जब और खुशहाल मुल्क की असली तस्वीर। कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात दर्ज कराने वाले मुल्क में बदतरीन लाकानूनियत, तशद्दुद और लूटमार खुदा का अजाब नहीं तो फिर क्या है? क्या अफगानिस्तान, इराक और लीबिया के मजलूमों की आहें रंग ला रही हैं? तीसरा मजमून मोहम्मद ओवैस संभली का बउनवान अच्छे दिन से खुद कफील होने तक शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि अच्छे दिन, सबका विकास और सबका विश्वास का हाल देखने के लिए आज किसी तहकीक की जरूरत नहीं है। ये नजारा बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटीज से गाँव की तरफ जाने वाली सड़कें खुद बयान
कर देंगी। कोरोना बहरान में जब दुनिया के तमाम ममालिक मुआशी बहरान से जूझ रहे हैं और किसी दूसरे मुल्क में सरमायाकारी की सोच भी नहीं सकते, ऐसे में खुद कफील होना फितरी बात है। मईशत का 70% हिस्सा बंद है, लोगों की आमदनी बहुत कम हो गई है, 10 करोड़ से ज्यादा मजदूरों का काम छिन गया है और ये सब कुछ बैंक लोन पर मबनी पैकेज से नहीं संभाला जा सकता। इन हालात में खुद कफील होना कोई नारा नहीं बल्कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। अदबी मज़ामीन के सफ़े पर सऊदी अरब के रियाज ताहिर का अफसाना भूख शाये हुआ है, जिसका एक इक़्तिबास पेश खिदमत है। उसने लालटेन की बत्ती बिल्कुल कम कर दी, टिमटिमाती रोशनी में हांडी को चूल्हे से नीचे कर लिया। उसने बच्चों को सूप दिया। कई दिनों बाद गर्मा गर्म खाने की नेमत हासिल हुई थी। बच्चे उस सूप को पीते ही दुबक कर सो गए। उसने बीवी के लिए और अम्मा के लिए भी सूप निकाला। अम्मा को किसी जायके की कोई परवाह न थी, बस वो पेट की आग बुझाने में पागल नजर आई। बीवी ने भी सैर होकर सूप पिया, बहुत तारीफ करती रही, लेकिन जब समीर ने खुद सूप मुंह में लिया तो बेइख्तियार उबकाई आने लगी। वो मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाजे के बाहर भागा और जोर से कै कर दी। करीब प्लास्टिक के डिब्बे से मुसलसल खर्राटे की आवाजें उसके दिमाग के खानों को नोचती हुई महसूस हो रही थी। इसी सफे पर मोहम्मद अलीम इस्माइल का मजमून बउनवान अफसानचे की जसामत भी शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं अफसानचे की जसामत के मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात मिलते हैं। अफसानचा एक सतरी भी मिलता है और 2 सफ़े का भी। अफसानचा दरअसल छोटा अफसाना ही होता है, उसके अज्जाए तरकीबी वही हैं जो अफसाने के हैं, लेकिन जरूरी भी नहीं कि एक अफसानचे में सभी अज्जा हों। अफसानचे में मंजर निगारी और जुजियात निगारी भी होती हैं, लेकिन निहायत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में। अफसानचे में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि उसका इख्तिताम चौंकाने वाला हो, तंजिया हो, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसके अलावा शौकत महमूद की गजल, नियाज जयराजपुरी की नज्म मजदूरनामा और महबूब खान असगर की नज्म कसाफत भी अदबी सफ़े की जीनत है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर सैयद अली हाशिम आबदी का मजमून बउनवान मकतूल जीत गया कातिल हार गया शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि दुनिया के जालिमों, जाबिरों और सितमगरों ने हक और अहले हक को दबाने और अपनी मनमानी चलाने के लिए हमेशा हक वालों के खून से होली खेली। मजलूमों के खून नाहक से खाकी जमीन को सुर्ख किया, लेकिन तारीख गवाह है कि हक न कभी तलवारों की झनकार से डरा, न जुल्म और सितम से खौफ खाया और न ही कभी उसकी आवाज दबी। बज़ाहिर रूह और जिस्म में जुदाई तो डाल दी गई, लेकिन उसकी रूह, उसकी आरजू और उसके इरादे न फकत कत्ल से कत्ल नहीं हुए, बल्कि सर चढ़कर बोलने लगे। फराजेदार हो या फराजे नेजा, हर मकाम पर हक की आवाज ने बातिल को ललकारा है। तारीख ने दोहरा दिया है कि शाम में आज मकतूल और कैदी का जलवा है और हाकिम लापता है। इसी तरह अमेरिका में मकतूल की तस्वीरें लोगों के हाथों में हैं, लेकिन खुद हाकिम छुपा बैठा जिंदगी की भीख मांग रहा है। मोहम्मद कमर अंजुम कादरी फैजी का मजमून टिड्डी दल अल्लाह का कहर या अल्लाह का शुक्र इस सफ़े का दूसरा मजमून है, जिसमें वो लिखते हैं कि इसके फवायद में से है कि अगर किसी को रुक रुक कर पेशाब आता हो तो टिड्डी मारकर उसकी धूनी देने से ये ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर किसी को इस्तिस्का का मरज हो, यानी बार बार प्यास लगती हो, तो टिड्डी का सर और पांव लेकर उसमें रेहान दरख्त की छाल मिलाकर पीने से इस मरज से छुटकारा मिल जाएगा। टिड्डी दल देखकर आमतौर पर उकताहट और खौफ का इजहार करते हैं, लेकिन शायद ज्यादा लोगों को इल्म नहीं है कि सऊदी अरब में टिड्डियां लोगों की मरगूब ग़िज़ा हैं। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डियों के हमले से जहां नुकसान हुआ, वहीं मकामी लोगों में बड़ी तादाद में टिड्डियां देखकर खुशी भी हुई और खास तौर पर टिड्डियां फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई। तीसरा मजमून ए आजाद कासमी का है, जिसका उन्वान है मुसलमानों के लिए तालीम जरूरी क्यों। आप लिखते हैं कि इस्लाम में जिस साले मुआशरे की तामीर पर जोर दिया गया है, उसकी तश्कील बेहतर तालीम से ही मुमकिन है, और ये तालीम महज दीनी तालीम नहीं बल्कि उसके साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। दुनिया में कौमों की तरक्की का राज तालीम में ही मुज़मर है। अब वक्त आ गया है कि हम इस आलमगीर सच्चाई को न सिर्फ समझें बल्कि उस पर अमल पैरा होकर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और कौम की तरक्की के लिए तालीम को एक तहरीक की शक्ल दें, और कोशिश ये हो कि हमारी कौम का कोई एक बच्चा भी तालीम से महरूम न रह सके। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज, केशव नगर, फैजुल्लागंज, लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 94
500-200-14। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में बांसी क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार तिवारी के दिशा निर्देश में बांसी रोडवेज पर कोतवाल शैलेश कुमार सिंह ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मास्क पहनने और हाथों को बार बार साबुन से एवं सैनिटाइजर से धुलने की भी अपील की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब मजदूर, असहाय व जरूरतमंदों को लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ समाजसेवी शरद यादव, मोहम्मद जावेद राइन द्वारा असहाय व बेसहारा एवं गरीबों को राहत सामग्री वितरित किया गया। गरीब परिवारों को राहत सामग्री वितरित करने के इस पुनीत कार्य को देखते हुए एडीएम पंकज कुमार वर्मा ने यादव उत्थान समिति भारत की तरफ से जारी प्रशस्ति पत्र को देकर दोनों समाज सेवकों को सम्मानित किया। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने आज से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए सेवा सत्याग्रह शुरू कर दिया है, जिसके साथ गरीबों, जरूरतमंदों को खाना खिलाने का कार्यक्रम है। इसी क्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव व महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने आज कांग्रेस कार्यालय के समक्ष एवं रोडवेज स्टेशन पर यात्रियों को भोजन के पैकेट वितरण किए। प्रयागराज में राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान ने मंडलायुक्त प्रयागराज मंडल आर रमेश कुमार को अपने संस्थान द्वारा बनाए गए 500 हस्त निर्मित मास्क सौंपे। मंडलायुक्त ने संस्थान का धन्यवाद करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश में संस्थान द्वारा मास्क बनाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। देवबंद में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शिव चौक शाखा की ब्रह्म कुमारी बहनों ने दूसरे दिन शनिवार को भी नगर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देवबंद मंडी समिति परिसर में बहनों द्वारा विभिन्न किस्म के 35 वृक्ष लगाए गए और उनको हरा भरा रखने का संकल्प भी लिया गया। राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनसुईया शर्मा उत्तर प्रदेश एवं आदित्य कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल के सोनभद्र जिला, ये एक ऐसा जिला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के कोटे में होती है। उस जिले में निवास करने वाले होनहार कार्यकर्ता मोहम्मद शाह फैजल को उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया IT सेल प्रभारी बनाया गया है। कानपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर खुशबू वेलफेयर सोसाइटी ने पशुपति नगर 3 मंदिर पार्क के आसपास पौधरोपण किया। इस दौरान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। खुशबू वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक चंद्रलता मिश्रा ने भी पौधारोपण किया और सभी से अपील की वे भी पौधारोपण करें। आजमगढ़ में शनिवार को 6 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी प्रवासी हैं। नए मरीजों के साथ ही जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 149 हो गई। इसमें 3 मरीजों की मौत हो चुकी है और 31 स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या में आजमगढ़ पूर्वांचल में दूसरे नंबर पर आ गया है। आजमगढ़ में ज्यादा 134 एक्टिव मरीज जौनपुर में हैं। अलीगढ़ के तहसील गभाना के निकट हाईवे सोमना मोड़ पर शनिवार की सुबह ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे व नाती घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के तमाम लोग मौके पर आ गए और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और हादसे में मृत बाइक सवार वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है दुनिया सहाफत का मीनार अवधनामा।